अच्छा, ये जो 9/11 पर वाक़या हुआ है ना, ये सारा उसका उनको चोट लगी हुई है, फर्स्ट एड मिल रही है। जिसम में देखिए निशान भी बने हुए हैं चोटों के। उस वक्त औरतों का यूनिफॉर्म होता था। So this is a Purple Heart. So the Purple Heart is one of the most prestigious awards you can get in the Marines. जो अफगानिस्तान वॉर है उससे रिलेटेड सब कल्चर उनका बारीकियों को इन्होंने देखा। हाँ, देखें बिल्कुल यूरिन की स्मेल है ना इवन के वो भी क्रिएट की हुई है। अमेरिकन प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वार में पार्टिसिपेट किया हुआ है। फौजियों को जो कैद करते थे ना, पकड़ते थे, पकड़े उसमें बंद करते थे। चांद के पैकेट भी पड़े हैं नीचे। तो जर्मनी वालों को ख्याल No, 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 no. अंकल ने मुझे स्पेशली कहा है कि टॉयलेट में जाओ। मैं कहूँ टॉयलेट में मुझे क्यों भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं अमेरिका में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत ही खूबसूरत प्यारे कज़न्स मौजूद हैं, क्यूट से शाज़ल, आर्यन और इशाल। तो मैं इशाल और आर्यन से फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। शाज़ल से मैं मिला था जब ये बहुत छोटा होता था और अब बहुत बड़ा हो गया है, और हम लोग मैरीन म्यूज़ियम में आए हैं। और शाज़ल और आर्यन हमें इस म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे कि ये किस एरिया में है। वर्जीनिया में ये है, और इसके बारे में हमें बताएंगे कि हम इधर क्या क्या फ़ाइंड कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। शाज़ल, आप स्टार्ट करोगे? अभी हम किस पोर्शन में हैं? बताओ इस पोर्शन के बारे में थोड़ा सा। ऊपर हम वर्ल्ड वॉर 1 म्यूजियम में जा रहे हैं। डिफरेंट सेक्शन है म्यूजियम के अंदर। लेकिन हम लोग बताते चलें कि शुरू में एक औरत थी, उसने हमें अलाउ नहीं किया वीडियो बनाना। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए कि इधर आके हम वीडियो नहीं बना सकते तो कहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन एक दूसरा बंदा जो ड्यूटी पे खड़ा हुआ था अमेरिकन, वो कहता है वो उसने हमें ढूंढा है और बोला है कि वो औरत रॉन्ग थी, आप लोग वीडियो बना सकते हैं, इसलिए अब हम इधर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। We're right now in the World War II section of this museum. So one really interesting fact about this museum is they single-handedly added artificial sense of the war. So I'll give you a good example. Further out in the museum, you're gonna go to the more modern area of the war, and you're gonna be in Iraq. That's where the museum part is taking place in. अच्छा आर्यन, आप हमें बताओ ये मतलब मारीन क्यों कहते हैं इसको? ये यूएसए आर्मी के डिफरेंट सेक्शंस हैं, लाइक एयरफोर्स, और ये मैरीन क्यों है? मैरीन नेवी है? No, so Marines, there are, I'm pretty sure, 6 sections of the United States Army. So there's Air Force, Marines, yada yada yada. So Navy and Marine is two different things. Navy, Marine is 2 different things. Navy is for everybody in the ocean, while there are the Marines. Marines, they take action right away. So wherever fight you see, they're going to be taking So action. जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, like that was in reality. Yeah. During the war. So they didn't. So now they're about to play this one movie, and this is a very interesting movie. I watched this when I was here last time. So what happens here is, so Americans are trying to take control of this certain plot of land. As you can see, the American men, I am pretty sure. Yep. So these are American men. They're on the other side of the whole field, and what they're trying to do is their objective is to get through the field to the German area. As you can see, it's a very, very open field, and that forest line is where the Germans are shooting at them with the machine guns. Now the problem is that there is no actual cover for it to protect the Americans. Now a strategy they imposed was they run and then they drop down to get cover, because the only protection they have is this grass, because that's obstructing the German senses so they can shoot them. So as you can see with the museum, they put so much detail into every little thing here. You can see they have added a lot of detail on the floor so you can feel how it was back then. They even वो देख लें वो कैसे उनको चोट लगी हुई है और फर्स्ट एड मिल रही है। So these were from Americans and these were from the people they were fighting. So there are some things that are alike, some things that are different. The biggest thing that for me was their grenades. The grenades are completely different. So That looks so cool. What is this? Aircraft engine. Designed in the heat of war, the powerful Liberty aircraft engine was perhaps. now, very interesting fact is that they have planes here, and back in World War II, you're going to see this soon enough. But in World War I, these planes, they came down here very close to the ground, shooting everybody in their area. अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे जो म्यूज़ियम है उसकी फ़ीस बिल्कुल नहीं होती, और ये मैंने दुनिया में काफ़ी ट्रैवल किया है, तो यूएसए में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। मैं पहले ही म्यूज़ियम में आया हूँ और उधर की फ़ीस बिल्कुल नहीं है।
तो ये देखें, ये उस वक्त फर्स्ट एड इस तरह मिलती थी. You can see how they had incredible. You can see the detail they put in. You can see the gun shells. You can even see their cards. So Family member of them, yeah. huh? So what they used to do is they used to put their family members or kids or loved ones in their helmets or anywhere to remind them what they're fighting for. Crazy. So it used to be a way of motivation because when they came here to fight, they were very, very afraid, and they kept pictures of their loved ones to motivate them to fight because they had to fight for a reason. We're right now at the World War II. Japan advances. So now we're at the World War II section. This is where America got in. World War II was happening before this, but what really is the main detail here is when America got in here. Now this section has very, very interesting facts. When Pearl Harbor attacked, they figured it out and they were saying we're entering the war. So what I'm pretty sure is when the president announced they're entering World War II and everybody was shocked. They did not want to fight. They were all enjoying their life. And, you know, it came out of nowhere. वो देखिए इन लोगों ने कितना बारीकी से काम किया हुआ है. उसका पसीना भी निकल रहा है उस बंदे का. Can you see? Yeah. They have so much attention to detail. You can see the Yes. bark on the wood. Crazy. On the floor, you can see every individual rubble on the ground, every little rock, the footsteps, the tracks, everything. उसके जिस्म में देखें निशान भी बने हुए हैं चोटों के. उसकी अगर आप कोनी में देखें, उसके बैक साइड में देखें, They put in so much detail. This is artillery, so they used to ताकि be. आप लोग इधर आएं और आप लोगों को फील भी हो कि आप Yeah. ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहाँ पे वार हो रही Watch, है. when you go into the actual war areas, you're going to see, you're gonna see every single thing around you. You're actually gonna feel like you're in a war. The sounds, you're gonna hear sounds like Yes. people yelling, and then the smell too. So they actually activate all your senses in terms of touching, feeling, seeing, and even smelling, including hearing too. So they try to introduce it, try to keep all the senses with you so you could truly feel how it was back then in the war. उस वक्त औरतों का यूनिफॉर्म होता था. जो लोग औरतें उस वक्त काम कर रही थी, वुमेन मरीन विंटर ड्रेस, और ये सर्दियों का यूनिफॉर्म था. कितना डिटेल में इन्होंने वर्क किया हुआ है. यू कैन सी एवरीथिंग. They make mini figurines so you could properly see how it was when they were combating. You can see people injured, the bullets in the water, people dead in the water. You can see people in the tanks, them telling everybody to rush forward and fight everybody. It shows you all the details. It shows you their awards that they have earned. Talk about the Purple Heart. Yeah, so this is a Purple Heart. So the Purple Heart is one of the most prestigious awards you can get in the Marines. It's where you get injured, like injured really badly for you like from a sacrifice you're trying to make. So when trying to say a soldier and you get injured, that's what you get. So the Cold War, it really just shows a lot about what happened with Korea, because the thing with Cold War it wasn't an actual war. It was more of a contest. So we can say that it was Cold War. So you more of can a contest आप to लोग see इधर who वाइब्रेशन फील कर सकते हैं. fights better. Yeah, and you can see they simulated use. वाइब्रेशन हो रही है ना. उसको फील दिया में जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना उसकी फील करना. This is this section's really cool. They purposely turned down the temperature because this area was held in the cold. So they purposely changed the smell. You can see it's enclosed. Yeah, you so can feel it. Yeah, once you go in, they're gonna purposely turn down the temperature so you can feel how cold it is. They add lights, they add gunshots. You can hear the bullets whizzing by, and then the smell. They change that up so you can smell it. It can smell like it's cold. You can feel it कि आप लोग सर्दियों में किस तरह जंग करते हैं यहाँ पे. मतलब देखिए, अगर आप सारा देखें वही वाइब दे रहा है. They're swarming all over us. Fire on the ridge. I say it again. आर्यन और शाज़ल, आप लोग यहाँ पे स्कूल वगैरह में जाते हो, आप लोगों के काफ़ी दोस्त हैं अमेरिकन. तो मुझे एक चीज़ बताओ, अमेरिकन प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वार में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लोगों की मदद की है या जो भी किया है, तो कैसे वो इस चीज़ को एज अ प्राउडली फील करते हैं या क्या सिचुएशन है उसकी? प्राउड तो नहीं है, बस प्राउड नहीं है. पेट्रियटिज्म होती है, कोई समझ होती है. लोग प्राइड लेते हैं. प्राइड लेते हैं मतलब कि हम हमारी अच्छी आर्मी है. ये हम वॉर भी जीते ऐसे हुआ है. तो आपके दोस्त वगैरह क्या इस चीज़ पे बात करते हैं वर्ल्ड वॉर्स के बारे में कि
अमेरिका ने जो पार्टिसिपेट किया है उस पर प्राइड लेते हैं? No, todas. I mean, they all feel proud that people fought for their land and they're living here safe. They're proud of that. Obviously, some aspects of the war they're not proud of, like the nukes they made. They dropped poor Japanese people. But a lot of the things, it was just for a good reason. World War II. It was because Hitler, he was trying to like take over the world, killing innocent people like Jews. And America, we stepped in and we saved many of them. So. और स्कूल में अभी हिस्ट्री में क्या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं वर्ल्ड वॉर्स के बारे में या जो भी वार्स इन्होंने? इतना ज़्यादा नहीं, they don't talk about it too much. I mean, elementary school they do a lot, but when you get more into high school, they start talking more about just the like details about America and how it was made. सही ये फौजियों को जो कैद करते थे ना, पकड़े इसमें बंद करते थे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो इधर खड़े तो नहीं हो सकते होंगे, बैठाते होंगे अंदर या? This is Shahzal's room. So शाहजल्स रूम? yes, in these small holes, and American men, they had to find them and they had to shoot them. You can see, you can't even see nobody here. And what happened was that they walk by, they pop out of nowhere and they kill them. So you can see, we had to go in, we had to open it up and. और ये वियतनाम में इस तरीके से इन्होंने ना ट्रैप बनाए होते थे। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं वियतनाम में ये सारा वियतनाम का कल्चर। अगर और आप देखें ये कैसे बने हुए हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही वियतनाम के लोग भी लगते हैं। क्या बनाए हुए हैं? ये ट्रैप्स होते थे। नहीं, देखिए इतना बड़ा सा कुत्ता है। जो गिरता था और इसके ऊपर पॉइजन होता था, जो लगता था इसके अंदर गया पाऊँ एंड इसको Infections are sad. कल आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? It looks pretty. Not pretty. It looks. कितनी दफ़ा आई हुई हो आप यहाँ पे? This is my first time over here. It's your first time. Yeah, Are you loving it? it's pretty good. Would you like to come again? I would like to come again. I just want to. Oh my We god. might finish the whole thing, but maybe not. Sound and feeling of how it is to be in a helicopter. So you can see Hear the the sound. submarines went down. So See all the small details here. I jumped down here and I'll fight. All right, you Marines, listen up. Zone is hot, so get off fast. And have to go inside. Time to nearest hole you find. Now be walking forward and burn to get that going forward. That's it. you can see they have perfectly good details of blood and all the blood. यहाँ पे आपकी गोलियाँ लगी हुई थी, कैसे उसे लगता, मतलब मैं ये चीज़ देख के हैरान हूँ। You can see the blood. You can see everything. But we still have much more things to go. आप देखिए वक्त के साथ साथ इसमें फ़र्क भी आ रहा है टेक्नोलॉजी में, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह में। ये अब कौन सा एरिया है? Like 2000s. इसका ये कहीं लिखा हुआ है, ये कौन सा ईयर था? ये डेजर्ट स्टॉर्म है ना। अफ्रीकन डॉग। What do you mean when you like standing here? That tank is when you're standing, it comes out of nowhere. Now watch, you're gonna smell this disgusting smell. मंसूर यार, जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरे नॉलेज के मुताबिक है, इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। अच्छा, ये जो 9/11 पर वाक़या हुआ है ना, ये सारा उसका आर्यन, ये देखो, ये उसका स्टील का स्ट्रक्चर उन्होंने लगाया हुआ है ट्विन टावर्स का, जब हिट हुआ है ना जहाज़ पर। इसको अगर आप हाथ लगाओ, यू लिटरली इसको आपको फील हो जाता है कि ये कितनी सॉलिड चीज़ है। तो ये उन्होंने उसके पीस रखे हुए हैं। ये दूसरा जहाज़ जो पेंटागन में लगा था, ये पेंटागन का उन्होंने बिल्डिंग का जो है ना वो एक पीस रखा हुआ है। कि इसको देखो कि कितना सॉलिड ये कंक्रीट और पूरा स्ट्रक्चर है। पेंटागन में जहाज, मतलब इस चीज़ के पेंटागन के एक साइड से एक दूसरा जहाज़ पेंटागन में आके लगा था ना, लो फ्लाइट के ऊपर आके। हाँ, 9/11 की बात है। 2 जहाज़ थे ना, तीसरा जहाज़ तो एक गिर गया था। तो ये वाला वो एक जो इसमें लगा था एक साइड से, तो ये उसका पीस है। और ये चेक करो ज़रा, इसका बीम चेक करो ज़रा, कितना ये हैवी बीम था। और ये कंक्रीट और ये सब कुछ, इसको देखो, लाइक अ सॉलिड चीज़ है। ये इसका फ्रेम जो है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये दूसरा बीम उन्होंने लगाया हुआ स्ट्रक्चर, ये पूरा फ्रेम इसके ऊपर ही खड़ा हुआ था ना। तो कितनी बड़ी बिल्डिंग देखते देखते नीचे आ गई। इसके बारे में कुछ ये क्या है, ये
इसी से रिलेटेड था हैं? पुलिस डिपार्टमेंट सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। सो ये वो जो इमरजेंसी सर्विस जो उन्होंने वहाँ सर्व किया है, ये मुख्तलिफ टाइम है, ये जो घड़ी रुकी हुई है जब जी, उस ये टाइम उस की। टाइम के जब ये हिट अच्छा। हुआ है, ये उस वक्त रुकी हुई है। हाँ, ये तो वहीं ये से वो वाली घड़ी इन्होंने इधर मतलब मसलन के किसी ऑफिस में किसी डिपार्टमेंट में जो घड़ी लगी मतलब होगी उस ना, टाइम की हाँ, घड़ी ये वो लगी हुई है। ये सारा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। टेलीफोन भी वहाँ का प्रिजर्व किया हाँ, हुआ वो है सारा उन्हें जो मिला है। भी कंडीशन थी जो भी। वो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्डिंग का क्या हाल हुआ था। हाँ, ये पेंटागन है मेरे ख्याल से, ये पेंटागन की। तो ये फिर पेंटागन की चीज़ें होंगी। हाँ, तो आप exactly अगर ऐसे देख ही। सकते हैं बेस कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट स्टॉप ऑफिस न्यू टू द टाइम। यार इन्होंने ना सबसे मज़े की चीज़ पता है क्या है मंसूर, के इन सारी जगह को इन्होंने ना डिवाइड किया हुआ है। ये देखें ऊपर Operating by, with, and through Hornet. station partners. ठीक है, पूरा उन्होंने सेटअप। कैसे इन्होंने मतलब आई मीन फीस नहीं ले रहे तो देखें इन्होंने देखें यार, पैसा ये लगाया हुआ इन्होंने है। अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली जनरेशंस के लिए पूरी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है ताकि लोग आएँ, इंटरेस्ट लें और देखें। ये अब सारा ये जो अफगानिस्तान वॉर है उससे रिलेटेड सब कल्चर उनका, ये सब ये देखिए चीज़ें। आप उनके जो औरतें बुर्का वगैरह हाँ, पहनती वो हैं। है। बिल्कुल और बिल्कुल छोटी आप बरीकियों को इन्होंने देखा। हाँ, देखें बिल्कुल, और उसकी डिटेल दी हुई है क्या क्या चीज़ उसे कहते हैं। अब इवन के उनका ये इसकी जो कॉकपिट होता है उसका, उसमें उसके गोली भी ऊपर लगी हुई गोलियाँ है। जो हैं फायर हुई हुई हैं, उसका लगाया दिखाया हुआ उन्होंने। सो लाइक अ होल हिस्ट्री यार। ये जिस तरीके से वहाँ ये स्टे करते रहे हैं लड़ाइयों में, यहाँ की लग्जरी छोड़ के जिस तरीके से ट्रूप्स जाके वहाँ पर अंकल आपको spend क्या करती लगता है हैं। ये लोग कैसे मतलब आर्मी माइंड कैसा होता है कि उधर कैसे रह सकते हैं कि यहाँ की लग्जरी छोड़ के ऐसे लोगों में जाना? यार क्या पैसा तो, था नहीं, या तो यार ये तो सारी आपकी एक कह लें कि नेशनलिज्म है ना बेसिकली। ये उनकी वो चल रही है ना शूरा का जो वो सिलसिला होता है जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं, जो इलाके के जो आप समझ लें कि जो सरदार कह लें या उनके जो लीडर्स होते हैं, वो लोकल्स के साथ कैसे डील ट्रूप्स करते हैं? बैठे हुए डील कर रहे हैं। उस पर लिखे हुए ना सिविल अफेयर्स जो उनका चल रहे हैं, और ये उसके मुतालिक है। मैनुफैक्चर होती है ओशकोश की बनी हुई है। अच्छा। ये उस एरिया ये में। अमेरिकन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती हाँ, है? बेसिकली उनकी अपनी चीज़ें हैं ना, ये वो हैं। मंसूर, ये देखें इधर झंडे। ये F-18 हॉर्नेट है ना, बहुत सी जगहों पर इसने सर्व किया है, और बहुत खूबसूरत तैयार है, पसंदीदा तैयारों में से एक तैयार है। ये देखें अंकल ये झंडे मेरे ख्याल से हाँ, अफगानिस्तान ये के- हाँ जी इराक का है। इराक का है। हाँ जी, और इसके अलावा मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो भी वहाँ के उस वक्त इस्लामिक ग्रुप्स थे उनसे उनके रिलेटेड वो चीज़ें, सारा वेपन उन्होंने रखा हुआ है जो जो इस्तेमाल होता रहा वहाँ पर। सो आप इवन के यहाँ पर ये देखो आए हुए हो ना, तो वो जो यूरिन की स्मेल है ना इवन के वो भी क्रिएट की हुई है। ये देखो ये ट्रैश पड़े हैं, ये देखो शिजान के पैकेट भी पड़े हैं नीचे, ये देखो उधर भी शेजान मिलता है बगदाद में। और ये रैपर्स प्लास्टिक बैग इस रियल टाइम में जो है ना वो उन्होंने बनाया। सही कह रहे हैं आप, स्मेल आ रही है यूरिन की स्मेल है, देखो ये जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं। अंकल ने बोला है कि मुझे रेस्ट रूम का रिव्यू देना है, तो यहाँ पे रेस्ट रूम है और ये पब्लिक रेस्ट रूम है, काफ़ी क्लीन है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई ही वाज सेइंग दिस। क्या डिफरेंट है इधर? ऑटोमेटिक किस लिहाज से? पानी फ्लश वगैरह? यू वांट टू सिट और उसके बाद पानी निकलेगा। यार इट्स क्वाइट नॉर्मल। आई मीन इन जापान में तो ये सारा ऐसा ही है। आर्यान मुझे गलत वॉशरूम में ले गया था। मैं भी को पता नहीं अंकल क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमें रेस्ट रूम में जाना चाहिए। वो थोड़ा सा डिसेबल्ड पर्सन का वॉशरूम था इसलिए बड़ा फैमिली रेस्टरूम है, लेकिन ये तो ये यहाँ का और ये शाह कमरे इधर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, क्लीन है बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तीनों ज़्यादा है। लेकिन व्हाई अंकल वाज सेइंग दैट वी हैव टू गो टू द रेस्ट रूम? आई डोंट नो। अंकल शाजल, आर्यान और इशू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है ये नेशनल म्यूज़ियम मरीन में आके, बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने वाली हैं। मैं वार के बिल्कुल मतलब मेरी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है उसके बारे में। इसकी मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ें जो उनसे लगी हैं, एक तो इस म्यूज़ियम में आने की टिकट बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है। और मैंने जितना भी ट्रैवल किया मुझे लगता है कि मतलब
बहुत से कंट्रीज़ में आपको टिकट देनी पड़ती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग बता सकते हैं कि अगर यूएसए में दूसरे म्यूजियम में भी टिकट नहीं मोस्टली नहीं है, मोस्टली नहीं है, तो ये तो यूएसए की बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कि इनकी डिटेल्स में जो इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, अगर आप अफगानिस्तान में थे, इराक में थे, वियतनाम में, उसका पूरा इन्होंने वाइब और एटमॉस्फेयर उस तरह की दी हुई है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को, आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं इधर? हम ये दूसरी दफ़ा हैं। दूसरी दफ़ा? ये हमने पीछे कुछ अरसा पहले इसको Explore काफ़ी किया। गुजरते रहे हैं, लेकिन कभी इसको देखा नहीं, लेकिन जब से देखा है इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस है। जो तो आपको इस चीज़ की सबसे बेहतरीन जगह, बेहतरीन चीज़ क्या लगती है इस म्यूज़ियम की? यार देखें, वॉर जिस तरह आपने कहा है ना, वो अच्छी नहीं है, तो उसमें हम इस बहस में नहीं पढ़ते बहुत ज़्यादा कि कौन किसको, इसलिए कि इन्होंने अपनी कंट्री को सेव किया, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप मुसलमान हो या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से देखें तो वो इसको ज़्यादती समझते हैं, लेकिन इन्होंने ओवरऑल जो है अपने डिफेंड किया उस चीज़ को, बिल्कुल, ठीक है। हम उस बिल्कुल। बहस में नहीं पढ़ते कि इन्होंने क्या अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट हिस्ट्री को जो थी उसको उसी तरीके से प्रिजर्व करके अपनी आने वाली जनरेशन को दे दी है कि भाई ये चीज़ें होती रही हैं और ये तुम्हारे सामने हाँ है। जी। फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो तुम लोग तलाश करो कि अच्छा किया है कि बुरा किया, तो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री उन्होंने दे बिल्कुल। दी मैं है। इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं, ये इसलिए मैंने बोली है क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड, मतलब यूट्यूब हाँ, चैनल जो है वर्ल्ड वाइड है। बहुत से मुस्लिम लोग, मेरे बहुत से फॉलोअर्स मुस्लिम हैं, वो भी देखते हैं। जब वो देखते हैं, वो ये ना कहें कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ इस जगह पे आके और दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कैसा किया। इन लोगों के लिहाज से जैसे आपने किया वो बहुत अच्छा है। बाकी हाँ, ये जनरल हर एक का इंफॉर्मेशन है, अपना ओपिनियन है, ओपिनियन है, तो वो एक इन्होंने अलग अपनी चीज़ है। कंट्री के हिसाब से अपनी कंट्री को डिफेंड किया है। बिल्कुल। और बहुत सी इन्होंने, जिस तरह हम कहते हैं शहादतें, मुसलमान हैं, इन्होंने भी बहुत से ब्रेवरीज हैं इनकी भी, बहुत से इनके ऐसी वाकयात हैं कि उन्होंने सर्दी लग रही है तुझे? लोगों को बचाया। बाकी सफाई बताओ कैसी थी? सफाई जबरदस्त, मतलब ये वो चीज मैं भूल गया। अंकल ने मुझे स्पेशली कहा है कि टॉयलेट में जाओ। मैं कहूँ टॉयलेट में मुझे क्यों भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? बाद में पता लगा जब मैं आया हूँ, अंकल टॉयलेट तो नहीं, बिल्कुल साफ था, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि मैं नहीं, वो उसका मकसद ये था कि यूरोप में मैं जब गया हूँ ना, एक तो वहाँ पैसे दे के यूज करनी पड़ती थी टॉयलेट, अच्छा। ठीक है, और फिर दूसरा वहाँ पर जो सफाई का जो मेयार था, मैंने सिर्फ दिखाने के देखो यार एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन उसमें भी उनकी सफाई जो है ना वो बहुत मेयारी और साफ सुथरी चीज है। जर्मनी वालों को ख्याल No, Germany. No, it was not a Germany. Then which country was it? It's all over, यूरोप की मैं बात कर रहा ओके हूँ। ओके, चलो यूरोप वालों अपना ख्याल रखो। और अगर आप लोग वाशिंगटन वाले एरिया में आए हैं तो इस नहीं, म्यूजियम में ओवरऑल लाजमी यूरोप जाइएगा। साफ है, अमेरिका से साफ ही है। लेकिन टॉयलेट साफ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वाशिंगटन वाले एरिया में हैं तो इस म्यूजियम में आके आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो यूएसए के अगले व्लॉग्स में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।